Hello friends, welcome to my channel DNK Indians. Myself DNK. Today we are going to discuss the next phylum of animal kingdom. It is SK helminthes. SK helminthes, also called Nematoda. Nematoda, common name is roundworm. The body is elongated round shape, so because the name is given roundworm. Now the general characteristics of SK helminthes. First of all, the body organization. It is organ system level. Symmetry, bilateral. Germ layers, all the three germ layers are present here, so it is triploblastic. Coelom is pseudocoelomate. It is very important character. In animal kingdom, it is the only phylum which have pseudocoelom. Pseudocoelom means the coelom is not in continuous manner. The coelom is found as scattered patches of mesoderm are present in between the ectoderm and endoderm. So, a discontinuous type coelom is formed during the gastrula stage of embryonal development. Suppose it is the ectoderm. This one is the endoderm. And this one is gut, or we can say arcantron. Now the mesoderm is found as scattered patches in between the ectoderm and mesoderm. Something like of that. Then suppose these are the mesoderm patches, and there is a cavity, body cavity is formed in discontinuous manner. In discontinuous manner, a cavity is formed. It is called pseudocoelom. So, SK helminthes, it is the only phylum in animal kingdom which have pseudocoelom. The next generalized character of SK helminthes, it is the segmentation. Segmentation is totally absent here. Segmentation is totally absent here. Digestive system is complete. So we can say the first evolutionary digestive system is present here. So the first complete type of digestive system is present in phylum SK helminthes. SK helminthes के पहले के जो फाइला है उनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अब्सेंट हियर. किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता. तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इट इज़ परफॉर्म बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. There is no specialized organ to perform the gases exchange. So we can say respiratory system is absent here. Now the circulatory system totally absent here. No blood or hemolymph type of structure is present in SK helminthes. Now the habitat where it is found. SK helminthes mostly are endoparasite. There are various
different types of species of Scalmanthus which are found endoparasite of vertebrates. There are some species reported which are free living. Free living species are terrestrial, and example here Rhabditis. Rhabditis, it is the species of Scalmanthus which is found terrestrial and living freely, not dependent upon the host. Rhabditis is found in organic rich matter. ऑर्गेनिक रिच मैटर जो सॉइल है, ऐसी सॉइल जिसके अंदर खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर है, उस सॉइल में रैबिडाइटिस ये स्पीसीज प्रेजेंट होती है, ये फ्री लिविंग होती है. नाउ द एंडोपैरासाइट स्पीसीज ऑफ एस्केलमेंथिस, वेरी कॉमन नेम इट इज एस्केरिस. इट कोज एस्केरिएसिस इन ह्यूमन. Wuchereria cause elephantiasis, also named filariasis, filarial worm, Wuchereria. Encyclostomata, common name is hookworm, and it is also a endoparasite in human. Enterobilus vermicularis, it is called pinworm. It is the most common, most frequently present endoparasitic species of Escohelminthes in human being. It is very common in children and in adult female. Another example of Escohelminthes in NCERT mention Melodogyne incognitia. Melodogyne incognitia, it is an endoparasite of टोबैको रूट्स के एंडोपैरासाइट होता है मेलोडोगाइन इनकॉग्निशिया. Cinerhabditis elegans, it is the species in which RNAi technique was discovered. RNAi technique discovered by Fire and Mello in Cinerhabditis elegans. RNAi technique is used to control the infection of endoparasite in crop plants. Example, टोबैको रूट वर्म्स. टोबैको रूट के अंदर मेलोडोगाइन इनकॉग्निशिया प्रेजेंट है, और इसको रोकने के लिए इस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट्स बनाए हैं जिनके अंदर RNAi टेक्निक पाई जाती है. और ये RNAi जो है ये ट्रांसलेशन लेवल पर मेलोडोगाइन इनकॉग्निशिया को रोकती है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकती है. नाउ द बॉडी फॉर्म ऑफ एस्केलमेंथिस, इट इज फाउंड elongated, cylindrical, and both ends are found tapered. Both ends are found tapered means body is elongated, cylindrical, but both ends are found tapered. नुकीले एंड वाला ये एनिमल्स होते हैं. Excretory system is present here. It contains a excretory tube along with the rennet cells. Some specific type of cells are present here which have specific role in excretion. The excretory tube open outside by excretory pore. In the body of Escohelminthes, a pore is found called excretory pore by which the excretory tube get open outside. Now the digestive system in Escohelminthes, we have already discussed, it have complete type of digestive system. Complete type of digestive system means there are separate pore for ingest the food and egest the digestive product.
undigested food. और वी कैन से एक्सक्रीटा। तो फूड को अंदर लेने के लिए जो पोर है वो माउथ अलग से प्रेजेंट है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड या एक्सक्रीटा को रिमूव करने के लिए जो पोर है वो अलग से प्रेजेंट है। सो वी कैन से माउथ एंड एनस आर सेपरेट हियर। सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड complete. Now in digestive system, muscular pharynx is present. A muscularized pharynx is present here in digestive system. Reproductive system is present here. Scalementhes are unisexual. Unisexual mean in a single organism only single type of gametes can be produced. So it is unisexual. For unisexual, another term is used is called dioecious. Dioecious, it have similar meaning, unisexual. Sexual dimorphism is present. Sexual dimorphism, it means we can identify the organism either it is male or female on the basis of external morphological characters. So in male and female, separate type of some specific morphological characters are present on the basis of which we can identify either the organism is male or female. So we can say sexual dimorphism present. जैसा ह्यूमन में होता है, ह्यूमन के अंदर भी हम क्या कि मेल एंड फीमेल को आउटर जो हमारे से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। उसी टाइप से इनमें भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम इनको मेल या फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन इन एस्केलमेंथिस इट इज़ ऑलवेज क्रॉस टाइप। क्रॉस टाइप अगर यूनिसेक्सुअल कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर किसी स्पीसीज में, तो उनमें फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस टाइप का। क्रॉस का मतलब होता है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस में एक फीमेल गैमेट कोई एक अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है और मेल गैमेट कोई अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है और वो दोनों का फ्यूजन हो रहा है, तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस क्रॉस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज अकर्ड internally. Internally mean internal type of fertilization, mean the fertilization occur inside the female body. फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है, तो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, जैसे फिशेस के अंदर, मछलियों के अंदर, वहाँ पे एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इन एस्केलमेंथिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही टाइप का पाया जाता है, दोनों ही टाइप के डेवलपमेंट प्रेजेंट है। डायरेक्ट मीन्स लार्वा स्टेज इज अब्सेंट, यानी कि एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट के सिमिलर कैरेक्टर्स वाला ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट कह सकते हैं। इन्फेंट क्या होगा, स्मॉल साइज का एडल्ट कह सकते हैं, एडल्ट की कैरेक्टर्स को बियर करने वाला ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन के अंदर होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको देख के हम कह सकते हैं कि भाई ये डायरेक्ट ही ह्यूमन का बच्चा है, उसके हाथ पाँव वगैरह जैसे एक एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं वैसे के वैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बस साइज छोटी है और वो गेमेटोजेनेसिस नहीं कर पा रहा है। बस जब जैसे जैसे बड़ा होगा और उसका बॉडी साइज इंक्रीज होगा और वो रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल बन जाएगा, तो दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्वा स्टेज नहीं होती, तो उसको हम डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट भी प्रेजेंट होता है एस्केलमेंथिस में, जिसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि एम्ब्रियो एंड एडल्ट फेज के बीच में लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। लार्वा कैसे अलग है कि लार्वा के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बिल्कुल ही एडल्ट से अलग होते हैं, उसको देख के लगेगा ही नहीं कि ये इस ऑर्गेनिज्म का लार्वा है। जैसे सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो लार्वा है कैटरपिलर, अब वो लार्वा जो होता है वो बिल्कुल भी बटरफ्लाई जैसा नज़र नहीं आता। लार्वा है वो कोकून बनाता है, फिर वो अपना चेंज करता है और वो बॉडी को, और वो क्या बन जाता है बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है तो उसको, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं,
इनडायरेक्ट। एस्केलमेंथिस में जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसको हम रेबडाइटिस लार्वा कहते हैं। रेबडाइटिस क्या है? लार्वा टाइप प्रेजेंट इन एस्केलमेंथिस। नाउ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमेंथिस इट इज एस्केरिस। एस्केरिस सबसे ज़्यादा स्टडी किया हुआ एस्केलमेंथिस है। सबसे पहले तो इसका कॉमन नेम, इसको हम राउंड वर्म कहते हैं, जैसे राउंड वर्म या थ्रेड वर्म, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी कैसा है? इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, सो बिकॉज द नेम इज गिवन राउंड वर्म और थ्रेड वर्म। एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एंडोपैरासाइट है ह्यूमन का। कहाँ पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंडोपैरासाइट होता है एस्केरिस। अब मेल और फीमेल दोनों इसमें अलग अलग होते हैं। वो हमने बोला कि ये भाई यूनिसेक्सुअल होता है। इट कोज एस्केरियसिस, ये एस्केरियसिस कोज करता है, ठीक है। अब एस्केरिस के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ये सिंगल होस्ट होता है इसमें। ह्यूमन के अलावा ये किसी दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करता है। अगर इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करना तो ह्यूमन को इन्फेक्ट करना पड़ेगा, ह्यूमन के थ्रू ही ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है। ह्यूमन स्पीसीज के अलावा किसी दूसरी स्पीसीज को ये इन्फेक्ट नहीं करता। तो इस टाइप का क्या हो गया? ये इसका एक ही टाइप का होस्ट है, तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहेंगे। इसकी शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। और ये क्यूटिकल जो है ये एक एंडोपैरासाइटिक एडेप्टेशन को रिप्रेजेंट करती है। इट प्रोटेक्ट, क्यूटिकल प्रोटेक्ट द एंडोपैरासाइट एस्केलमेंथिस फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय होस्ट एनिमल। होस्ट एनिमल जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे तो उससे फूड तो डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पैरासाइट है वो पैरासाइट डाइजेस्ट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इन एस्केलमेंथिस इट इज़ क्यूटिकल। क्यूटिकल का प्रेजेंस होना उसको एंजाइम के एक्शन से बचाता है। इसकी जो एपिडर्मिस है वो सिनसाइटियल एपिडर्मिस इसको बोलते हैं। सिनसाइटियल एपिडर्मिस का मतलब होता है कोइनोसाइटिक टर्म यूज कर सकते हैं, या हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिनसाइटियल कंडीशन। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट इन बॉडी वॉल। एस्केरिस के बॉडी के अंदर, बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती है। यानी कि मान लेते हैं कि ये बॉडी है, किसी एस्केरिस का बॉडी है, तो इसके अंदर जो मसल्स है वो कुछ इस टाइप से उनका अरेंजमेंट होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी अगर ये मसल्स प्रेजेंट है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। जब हम एनेलिडा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। अच्छा, मेल एस्केरिस के अंदर या फीमेल के अंदर भी टीलोगोनिक गैमेटोजेनेसिस होता है। टीलोगोनिक गैमेटोजेनेसिस यानी कि इसको हम कैसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई गोनेड है और इस गोनेड से जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं कि जब वो किनारे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? मैच्योर होते जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ये गैमीट प्रोड्यूस हुआ, तो ये गैमीट जैसे जैसे ग्रोथ कर रहा है तो वो कुछ इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, ये बड़ा हो जाएगा। और यानी कि जो आगे के जो गैमीट है वो मैच्योर है और पीछे वाले इमैच्योर है, कुछ इस टाइप का। इसको हम बडिंग भी कह सकते हैं, बडिंग मेथड से, ठीक है ना। तो बडिंग मेथड से ये गैमेटोजेनेसिस करता है। मेल एस्केरिस की बात करें तो मेल एंड फीमेल के बारे में हम कंपेयर करेंगे। तो मेल एस्केरिस के अंदर देखिए बॉडी स्ट्रक्चर कि एक तो इट इज़ फाउंड स्मॉलर लेंथ एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के कंपेरिजन में इसका जो बॉडी लेंथ है इट इज़ फाउंड स्मॉल। इट हैव माउथ एज ए सेपरेट ओपनिंग
and a cloacal opening is present here. अब यहाँ पे सेपरेटली एनस नहीं है, ठीक है ना, वो मतलब एनस का काम कर रही है, ठीक है ना, माउथ अलग है एनस अलग है, वो वाली बात यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे जो एनस है वो किसके थ्रू ओपन हो रहा है, क्लोकल अपर्चर। क्लोकल क्यों बोलेंगे, क्लोका प्रेजेंट। अब क्लोका जो होता है वो क्या होता है, एक कॉमन चैम्बर होता है जो इगेशन का काम भी कर रहा है, एक्सक्रीटा को स्टोर कर रहा है, फिर उसको निकालने का काम कर रहा है। अच्छा, ये इसके थ्रू वो अपने गेमिट्स भी रिलीज कर रहा है, जैसे मेल एस्केरिस से ये क्लोकल अपर्चर के थ्रू ही अपने जो गेमिट्स है उनको भी रिलीज कर रहा है। तो एक ही पोर्ट से दो फंक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोकल अपर्चर इज प्रेजेंट, डायरेक्टली एनस नहीं बोलेंगे। और इस क्लोकल अपर्चर के ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पीनियल सिटी कहते हैं। पीनियल सिटी इट इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल एस्केरिस का। ये कॉपुलेशन के टाइम में, संगम के टाइम में, जब फीमेल के साथ में संगम करेगा तो उस समय क्या करेगा, ये फीमेल को होल्ड करने का काम करता है पेनियल सिटी। मेल एस्केरिस का एक और मार्कर कैरेक्टरिस्टिक है इसका कर्व्ड पोस्टेरियर एंड। पोस्टेरियर एंड जो होता है वो हमेशा कर्व्ड होता है, स्ट्रेट नहीं होता। तो मेल एस्केरिस को इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्मॉल लेंथ है, कर्व्ड एंड है, पीनियल सिटी प्रेजेंट है, क्लोकल अपेरेचर प्रेजेंट है। तो दैट टाइप ऑफ एस्केरिस इज 100% इट इज एस्केरिस मेल। सो वी कैन डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल एस्केरिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फीमेल में ये क्लोकल अपर्चर, पेनियल सिटी, कर्व एंड ये प्रेजेंट नहीं होंगे। जो हमने अभी डिस्कस किया उसी को यहाँ पे वापस लाइन अप कर रहे हैं। शॉर्टर एंड थिनर देन फीमेल, कर्व्ड पोस्टेरियर एंड, कॉमन ओपनिंग फॉर डिस्चार्ज ऑफ सीमन एंड फीकल मैटर, मोनोऑर्किस, सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में पूछा हुआ सवाल है ये, कि ये जो एस्केरिस होता है ये मोनोऑर्किस होता है, यानी कि नेचुरली बाय बर्थ इस स्पीसीज के सारे मेल में केवल एक ही टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मोनोऑर्किस, नेचुरल मोनोऑर्किस का एग्जाम्पल है। वन पेयर ऑफ क्लोकल सिटी ऑन क्लोकल अपर्चर इज प्रेजेंट, ठीक है ना। अभी डिस्कस किया था हमने, जो क्लोकल ओपनिंग है वहाँ पे क्लोकल सिटी प्रेजेंट है जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इनके जो स्पर्म होते हैं एस्केरिस के, वो कैसे होते हैं, अमीबॉइड, यानी कि अमीबा के जैसे इर्रेगुलर शेप के, एंड दे हैव एबिलिटी टू मेक सूडोपोडिया, और वी कैन से दे हैव एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। तो अमीबॉइड नेचर के स्पर्म ये बनाता है। अगर हम मेल स्पर्म का पोस्टेरियर एंड का पोस्टल पार्ट देखें, वेंट्रल पार्ट, तो यहाँ पे देखिएगा कि प्री एनल पेपिली प्रेजेंट है। प्री एनल पेपिली यानी कि उभार है कुछ, सम बड लाइक स्ट्रक्चर, कितनी होती है, 50 पेयर्स होती है। और ये भी क्या करते हैं, फीमेल को होल्ड करने का काम करती है। फीमेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। कॉपुलेशन के टाइम में, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इट यूज टू होल्ड द फीमेल। क्लोकल अपर्चर, पोस्ट एनल पेपिली ये 5 पेयर होती है। तो प्री एनल पेपिली 50 पेयर्स एंड पोस्ट एनल पेपिली 5 पेयर्स। क्लोकल अपर्चर है, और क्लोकल अपर्चर के ऊपर क्या है, क्लोकल सिटी भी प्रेजेंट है, पेनियल सिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है और ये फीमेल को होल्ड करने का काम करते हैं। नाउ द माउथ इन एस्केरिस इट इज़ फाउंड डेंटिकुलेटेड। डेंटिकुलेटेड मीन्स यहाँ पे दांत प्रेजेंट होते हैं, दांत जैसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो डेंटिकुलेटेड लिप्स आर प्रेजेंट हियर। तो ये यहाँ पे देखिए कि डेंटिकुलेटेड लिप्स है, यहाँ पे कुछ दांत जैसा स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली दांत उसको नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ कुछ उसके जैसा मिलता हुआ काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। माउथ प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ये डबल पेपिली प्रेजेंट है, एम्फिड प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे डेंटिकुलेटेड लिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फीमेल एस्केरिस के बारे में डिस्कस करते हैं। फीमेल एस्केरिस इट इज़ लॉन्गर एंड थिक देन द मेल। फीमेल गोनोपोर इज प्रेजेंट हियर। फीमेल गोनोपोर यहाँ पे सेपरेट होता है। मेल के अंदर मेल गोनोपोर नहीं था, वहाँ पे क्या था, क्लोकल अपर्चर था जो एनस का भी काम कर रहा था और मेल गोनोपोर का भी काम कर रहा था। यहाँ पे एनस सेपरेट है, फीमेल में एनस सेपरेट है। पेनियल सिटी यहाँ पे नहीं होती, एनल पेपिली भी यहाँ पे नहीं होती।
ये डाइडेल्फिक होता है। वो क्या था, मोनोऑर्किस था। मेल जो था वो मोनोऑर्किस था, एक ही टेस्टिस प्रेजेंट था। लेकिन फीमेल जो होता है वो डाइडेल्फिक होता है, यानी कि यहाँ पे 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, 2 यूट्रस प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एग्स ये प्रोड्यूस करता है वो मेमिलेटेड होता है। मेमिलेटेड यानी कि जो हमारी मेमरी ग्लैंड होती है, कुछ उस टाइप के निप्पल जैसे स्ट्रक्चर इसके एग्स के ऊपर प्रेजेंट है, ये टाइप का, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मेमिलेटेड। निप्पल लाइक प्रोट्यूबरेंस आर प्रेजेंट ऑन द एग्स, ठीक है, इसलिए इसको मेमिलेटेड। मैमल से इनका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ नाम है यहाँ पे। तो एग को देखेंगे तो कैसा होगा, ओवल शेप होगा, ओवल शेप एग होगा। इसमें सबसे बाहर की तरफ आउटर लेयर होगी जो प्रोटीन की बनी होती है, मिडल लेयर होती है जो काइटिन की बनी होती है, इनर जो लेयर होती है वो एस्ट्रिफाइड ग्लाइकोसाइड की बनी हुई होती है। और ये सारी जो लेयर्स है, दीज आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड इट कैन प्रोटेक्ट द एग इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, इवन इन ईयर्स द एग्स कैन सर्वाइव। Now the body of female Ascaris, mouth is separate here, anus is separate here, complete type of digestive system. Excretory pore is separate, मेल में भी excretory pore जो सेपरेट था। फीमेल में फीमेल गोनोपोर अलग से है, ठीक है। मेल में मेल गोनोपोर वहाँ पे अलग से नहीं था। मेल गोनोपोर जो था वो एनस ही मेल गोनोपोर की तरह काम भी कर रही थी। लॉन्गिट्यूडिनल डार्क लाइन प्रेजेंट ऑन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों की बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये इसकी एक कोई मतलब न्यूरॉन्स जैसा कुछ है, तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एक डार्क अपीयरेंस होती है। तो ये डार्क लाइन की अपीयरेंस जो होती है, ये एस्केरिस को आइडेंटिफाई कर दूसरे एस्केलमेंथीज से अलग आइडेंटिफाई करवाता है कि भाई ये एस्केलमेंथीज ये एस्केरिस है, ठीक है, ये एस्केरिस है। तो एस्केरिस को आइडेंटिफाई करने का ये एक कैरेक्टर है, लॉन्गिट्यूडिनल डार्क लाइन प्रेजेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनका क्या होता है, भाई फीमेल है जो फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल क्रॉस, उसके बाद में एग जो है वो सॉइल में रिलीज कर देगी। लो टेम्परेचर चाहिए एग्स को, तो ह्यूमिड कंडीशन के अंदर या जहाँ पे नमी होती है, टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे ये एग वहाँ पे सर्वाइव जल्दी करते हैं। हाई ऑक्सीजन लेवल इनको चाहिए, गुड मॉइस्चर चाहिए। रेनी सीजन ये प्रीफर करते हैं। रेनी सीजन में इनको बड़ा अच्छे से वो एग वहाँ पे एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट अच्छे से होता है। नाउ द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ एस्केरिस एग अप टू 6 ईयर्स, 6 साल तक जो है इन्फेक्शियस स्टेज होती है एस्केरिस एग की। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज जो होती है एग की, वो होती है 10 to 14 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, एग रिलीज होने के बाद में 10 से 14 दिन का जो पीरियड होता है वो जुवेनाइल का मतलब होता है स्टार्टिंग फेज, ठीक है ना। जुवेनाइल वेरी 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 स्टार्टिंग फेज एंड वेरी एनर्जेटिक फेज वी कैन से। Larva is rhabditiform, as we have discussed earlier. Rhabditiform larva is found in Aschelminthes, here in Ascaris also. First, rhabditiform larva is not infectious and it remain inside the egg. एग के अंदर ही ये लार्वा डेवलप होता है और ये इन्फेक्शियस नहीं होता है। अगर लार्वा जो है एग के अंदर डेवलप होता है तो इस टाइप को हम क्या वीवीपेरी कह सकते हैं। तो ये कुछ वीवीपेरी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा स्टेज फ्रॉम इन सॉइल एंड इट इज़ इन्फेक्शियस। जो सेकेंड रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जो होता है वो सॉइल के अंदर बनता है और ये क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, यानी कि ये लार्वा किसी दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर मोस्ट इन्फेक्शियस। जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। एंटर इन ह्यूमन बॉडी विद फूड एंड वाटर, ठीक है ना। खाने के साथ में, पानी के साथ में, सब्जियों वगैरह फलों, हम कहते हैं कि फल या सब्जी को धो के खाना चाहिए, उबाल के खाना चाहिए। उसका कारण यही है कि क्योंकि बहुत सारे जो पैरासाइट है उनके एग्स जो होते हैं वो इतने माइक्रोस्कोपिक टाइप के हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते, वहाँ पे चिपके हुए रह जाते हैं और वो हमारे फूड के साथ में या पानी के साथ में बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। फीमेल एस्केरिस प्रोड्यूस
2 lakh eggs daily for about 10 years. So we can say a high reproduction rate is found here. ये एक नेचर का फिनोमिना है, या वी कैन से इट इज़ द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चों के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, दे प्रोड्यूस ए लार्ज साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग. ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग बहुत बड़ी संख्या में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बहुत सारे उनके मर जाते हैं. मान लें 90% भी मर गए, 99% भी मर गए, तो उनका जो 1% भी है वो इतना होता है, सफिशिएंट होता है कि वो इस स्पीसीज को बचाए रखने के लिए काम कर जाता है. तो ये छोटे एनिमल्स हैं और इनके बच्चों के मरने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में एग्स प्रोड्यूस करते हैं. Wuchereria bancrofti, it is the next Aschelminthes, Wuchereria bancrofti or Wuchereria malai. There are two species, bancrofti and malai, commonly called filarial worm. Filarial worm, it causes filariasis. Filariasis also known as elephantiasis. Elephantiasis भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके इन्फेक्शन से एलिफेंट के जैसे अपीयरेंस वाला जो हाइंड लिम्ब में लेग्स एंड पेल्विक एरिया वाला पोर्शन, वो कुछ इस तरीके से हो जाता है. इसलिए इसका नाम क्या आया है? एलिफेंटियसिस. एलिफेंटियसिस यहाँ पे नाम आया. इसका दूसरा नाम फाइलेरियसिस है. द वेक्टर ऑफ द वुचेरेरिया, इट इज़ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो इसका वेक्टर है. जनरली अफेक्ट द लिम्फ वेसल. इसका जो इन्फेक्शन ये किसको करता है, किसके ऊपर इन्फेक्शन करता है? लिम्फ वेसल्स ऑफ हाइंड लिम्स. हाइंड लिम्स की लिम्फ वेसल्स के ऊपर अटैक करेगा, उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से वो वेसल्स जो होती है उनमें लिम्फ भर जाता है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड इट इज़ ए क्रॉनिक डिसऑर्डर. और एक बार हो गया तो लंबे समय तक चलता है. जनरली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है. पिनवर्म. पिनवर्म वेरी कॉमन, जो या हम कह सकते हैं द मोस्ट कॉमन एंडोपैरासाइट इन ह्यूमन, इट इज़ पिनवर्म, एंटेरोबिलस वर्मिकुलरिस. इट इज़ एन एस्केहेलमिंथिस निमेटोडा है ये. तो मोस्ट कॉमन एंडोपैरासाइटिक निमेटोड इन ह्यूमन, मोस्ट फ्रीक्वेंट इन फीमेल एंड इन चिल्ड्रन. रेबिडिटीफॉर्म लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है. एंड इट प्रोड्यूस इचिंग इन एनस. बच्चों के एनस में इचिंग प्रोड्यूस ये करता है. ये इट इज़ वीवीपेरस. ये वीवीपेरस क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको इनके जो एग्स के अंदर ही लार्वा बन जाता है, तो इस कंडीशन को हम वीवीपेरी से जोड़ के देख सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन इन NCERT फॉर एस्केलमेंथिस, इट इज़ एनसाइक्लोस्टोमेटा. एनसाइक्लोस्टोमेटा और हुकवर्म, इसको हम हुकवर्म या एनसाइक्लोस्टोमेटा कहते हैं. ये भी एस्केलमेंथिस है. इट कोज एनसाइक्लोस्टोमियसिस. एनसाइक्लोस्टोमियसिस, ठीक है ना. कॉमन नेम क्या है? नेक्टर अमेरिकनस. जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके अंदर, USA वगैरह, यूरोप और वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है. It produce symptoms like rashes at larval entry, abdominal pain, and ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये रहता है तो ये क्या करता है, क्योंकि ब्लीडिंग होती है और उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी डेवलप होती है उन लोगों में जिनके अंदर ये हुकवर्म इन्फेक्शन करता है. तो क्रॉनिक ब्लड लॉस की वजह से ये आयरन डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्केलमेंथिस. आई होप the information given in this video will help to you to prepare your NEET preparation. ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड टिल देन, थैंक यू वेरी मच.